Bismillahirrahmanirrahim. This is Samsam Zulkarnain, your English teacher from Punjab Group of Colleges. Dear students, we are here with lesson number 3, and it is about the comprehension of the chapter which we have studied, the importance of family. Dear students, we are going to discuss the questions which are given in the end of the chapter, the importance of family. So let's begin with the question number 1. And I'm going to read the statement of the question. The statement is, what is the central idea of Keen's essay and how is it related to the title? हमने ये जो चैप्टर पढ़ा द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली, इसका थीम क्या है और द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली जो टाइटल है वो कैसे रिलेट करता है इस थीम से. तो व्हेन वी हैव गॉन थ्रू दिस essay, तो उसके अंदर उसने यही चीज़ें बताई हैं कि फैमिली जो सिस्टम है दैट इज़ प्लेइंग अ पिवटल रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ अ सोसाइटी. एक मुआशरा बनाने के लिए ख़ानदान जो है एक बहुत ज़रूरी किरदार अदा करता है. और इस ऐसे के अंदर ही हैज़ मैंशनड दैट द वेस्ट हैज़ शैटर्ड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली एंड दे आर सफरिंग. तो इस ऐसे के अंदर उसने मेंशन किया है कि इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली क्या है और इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली विद रिस्पेक्ट टू सोसाइटी. क्योंकि सोसाइटी फॉर्म ही फैमिलीज़ जब इकट्ठी होंगी तो एक मुआशरा बनेगा. तो फैमिली सिस्टम जितना स्ट्रॉन्ग होगा वहाँ पे उतना ह्यूमन रिसोर्स अच्छा डेवलप होगा और वहाँ के जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो प्रॉपरली नरिश्ड होंगे, प्रॉपरली ट्रेंड होंगे, वेल इक्विप्ड होंगे और वो सोसाइटी बड़ी स्ट्रेंथेंड होगी. तो वेस्ट के अंदर जो फैमिली सिस्टम शैटर्ड है उसको क्रिटिसाइज़ किया है इस ऐसे में. सो द थीम of this essay is very much related to the title, the importance of family. The whole this essay is revolving around this very title, the importance of family, that how the family plays a pivotal role in the formation of a good society and how the West is suffering due to not giving importance to the family system. डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट मैं पढ़ता हूँ. व्हाट अकॉर्डिंग टू कीन इज़ द ओनली रेवोल्यूशन दैट विल हील द इल्स ऑफ आवर सोसाइटी. हमारी जो सोसाइटी है उसकी जो बुराइयां हैं उसको क्या, कौन सा वो रेवोल्यूशन है, कौन सी वो चेंज है जो हील करेगी. तो शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज इन द सोसाइटी मेल फीमेल दे बोथ वुमेन एंड मैन, if one of the strata of the society will not be taking part actively, तो वो society imbalance होंगी. तो sharing of responsibilities is very much necessary. जितनी भी responsibilities हैं वो men और women वो share करें, तब ही हम इस revolution के ज़रिए हमारी जो society के ills हैं, जो problems हैं, जो issues हैं, उनको हम tackle कर सकते हैं. और nourishing and protection of children basically they are going to bring great change in the society if they are being nourished and if they are being trained properly. उनकी ethics, उनके moralities, education properly उनको train किया जाए तो ही society को हम reform कर सकते हैं. Because children is the nursery of the society. If you will be properly training your children, then you will be able to bring a great change in your society. Dear students, let's move to the next board to have some more questions and their answers. Okay, dear students, हमारा next question, question number 3. The statement of the question is the thesis of the essay the importance of family implied or stated? थीसिस ऑफ द ऐसे उसके अंदर जो द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली है वो इम्प्लाई किया गया है या स्टेट किया गया है. इम्प्लाई का मतलब होता है इनडायरेक्टली किसी चीज़ को बताना और स्टेट का मतलब क्लियरली किसी चीज़ को एक्सप्रेस करना. सो व्हेन वी गो थ्रू द ऐसे वी कैन सी दैट द थीसिस ऑफ दिस ऐसे हैज़ बीन स्टेटेड. उसको क्लियरली एक्सप्रेस किया गया है. उसके अंदर क्लियरली the writer of this essay, Keen, has mentioned the importance of the family, and he has also mentioned that how West is suffering because of not giving importance to the family system. तो
ये जो फैमिली सिस्टम के बारे में ये जो ऐसे लिखा गया है, इसमें राइटर ने स्टेट किया है, क्लियरली एक्सप्रेस किया है उसका अपना ओपिनियन, और ही हैज़ यूज्ड फैक्ट्स टू एक्सप्रेस his opinion, and he has proved that he is mentioning really the importance of the family. Dear students, हमारा next question है, what is the point of the fourth paragraph? What does its contents have to do with the thesis of the essay? पैराग्राफ, फोर्थ पैराग्राफ, उसका पॉइंट क्या है, वो क्या हमें बताना चाह रहा है ऐसे में, और जो थीसिस ऑफ द ऐसे है, जो बुनियादी तौर पर ये जो ऐसे है इसका जो थीम है या जो बताना चाह रहा है ऐसे के अंदर जो पॉइंट अपना क्लियर करना चाह रहा है इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली को, उससे उसका क्या रिलेशन है। तो जो आपका फोर्थ पैराग्राफ है उसके अंदर अगर आप देखें तो उसमें उसने मेंशन किया है इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन जो है, उसके अंदर जो शिफ्ट आया है इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन जो है उसमें वो बता रहा है कि इन द बिगिनिंग इकोनॉमिक्स वाज बेसिकली मैनेजिंग अ हाउस होल्ड, यानी कि अपने घर को, अपनी फैमिली को स्ट्रेंथन करना, ये इकोनॉमिक्स कहलाता था। कि अगर आप अपनी फैमिली को प्रॉपरली नरिश कर रहे हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहे हैं, तो ये इकोनॉमिक्स, ये डेफिनेशन थी इकोनॉमिक्स की। बट नाउ आफ्टर दिस इंडस्ट्रियलाइजेशन द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स हैज़ बीन चेंज्ड, और इकोनॉमिक्स का जो अभी बुनियादी मकसद है, इकोनॉमिक्स का जो मीनिंग है वो अगर आप देखें तो वो है, चेंज हुआ है, और ये सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ कमोडिटीज़, जो डेली कमोडिटीज़ हैं, जो डेली यूज्ड आइटम्स हैं, उनकी प्रोडक्शन, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन। तो अगर आप ये देखें तो इसमें अब इसका रिलेशन इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली से क्या है, वो इस तरह के इन द बिगिनिंग जो इकोनॉमिक्स थी उसकी डेफिनेशन के मुताबिक ये था कि आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं, आप अपनी फैमिली को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। लेकिन मटीरियलाइजेशन के इस दौर में इंसान इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली को भूल चुका है। अपनी फैमिली के बजाय वो मटीरियलिस्टिक अप्रोच अपना के मटीरियल्स को ज़्यादा फोकस कर रहा है, और उनकी प्रोडक्शन के ऊपर, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर और उनकी कंजम्पशन के ऊपर वर्कआउट कर रहा है। तो ये क्रिटिसिज्म है बेसिकली कि इंसान ने मटीरियलाइजेशन के चक्करों में फैमिली सिस्टम को बॉदर नहीं किया और उस फैमिली सिस्टम को शटर कर दिया है, और वो मटीरियल परसूट्स के पीछे पड़ गया है। ये स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट बोर्ड टू हैव द क्वेश्चन। ये स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन है। कीन सेज we heal ourselves by learning to give to our children what we did not receive. What does he mean? Do you agree? स्टेटमेंट है कीन की इस ऐसे के अंदर जिसमें वो कह रहा है we heal ourselves by learning to give to our children. हम अपने आप को हील कर सकते हैं वो चीज़ें अपने बच्चों को देकर what we did not receive, जो हमें नहीं मिली। What does he mean? इसका मतलब क्या है? Do you agree? क्या आप एग्री करते हैं या नहीं? सो कीन बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी चाहता है विद द हेल्प ऑफ चेंज इन द फैमिली सिस्टम, और उसके अंदर जो वो पॉइंट्स मेंशन कर रहा है और उसके अंदर जो रिफॉर्म्स लाने की कोशिश कर रहा है, उनमें से एक पॉइंट ये भी है कि इफ़ समबडी इज़ द पार्ट ऑफ अ डिसफंक्शनल फैमिली, if somebody has been brought up by his parents, her parents, not in an appropriate way, it does not mean that he or she has to carry the legacy. अगर उसको properly उसकी nourishment नहीं हुई है, अगर properly उसको brought up नहीं किया गया है, उसको properly educate नहीं किया गया है, तो इसका बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि वो आगे अपनी नस्ल को भी उसी तरह ही ट्रीट करें। और यही चीज़ है जिसके ज़रिए आप सोसाइटी को हील अप कर सकते हैं। अगर पिछली जनरेशन की वजह से एक नेक्स्ट जनरेशन जो है वो प्रॉपरली नरिश नहीं हो पाई और उसके अंदर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसी लेगेसी को कैरी ऑन करे, वो उन चीज़ों से सीखे और अपनी नेक्स्ट जनरेशन के अंदर वो महरूमियत जो है वो इनकलकेट ना करे। सो बेसिकली इस लाइन का बुनियादी मकसद ये है कि जो महरूमियाँ और जो कमियाँ आपकी जनरेशन में रह गई हैं
उनको आप ख़त्म कर सकते हैं कैसे? अपनी नेक्स्ट जो जनरेशन है उसको वो तमाम चीज़ें देकर जो आपको नहीं मिली। सो ब्रॉट अप योर चिल्ड्रन विद ग्रेट केयर, पहली चीज़ ये है। और दूसरा, फैसिलिटेट देम विद फैसिलिटीज़ यू आर डिप्राइव्ड ऑफ, कि जो फैसिलिटीज़ आपको नहीं मिली हैं, इफ़ यू आर इन अ पोजीशन you have to facilitate your children so that they would be brought up in a way that they will be a good generation and they could help in the transformation of the society. So dear students, this is all about the question answers of the chapter The Importance of Family, which was an essay by Keene. I hope so you have understood it properly. Inshallah, we'll see you in upcoming session. God bless you all. Thank you so much.